السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران کا آغاز ہوتا ہے آل عمران. اس سورہ کا نام آل عمران ہے اور اس سورہ مبارکہ کا نام آل عمران ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ سورہ آیت نمبر 33 کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کے اندر حضرت عمران یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی جو ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا محترم کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا گیا. یہ سورہ مدنی ہے، ان کے مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کے 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں اس سورہ کی. الفاتحہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی توحید سے اور البقرہ کا آغاز قرآن مجید کے تعارف سے ہوا تھا اور سورہ آل عمران کی ابتدا ان دونوں مضامین سے ہو رہی ہے. کن دونوں مضامین سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور اس کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اسی ذات یعنی کہ الف لام میم جو الفاظ استعمال کیے حروف مقطعات کے بعد کون سی ذات کا لفظ استعمال ہوا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ وہ ذات جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے، اس ذات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور اس سورہ کا آغاز انہی الفاظ سے ہوتا ہے سورہ آل عمران کا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت بھی موجود اور قائم تھی، اور جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس وقت بھی اللہ رب العزت کی ذات قائم اور دائم رہے گی. اس صورت کے نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ نجران کا علاقہ جو شام اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے، وہاں سے عیسائیوں کا ایک نمائندہ وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام اور عیسائیت کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا تھا، یعنی کہ وہ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوحیت میں شامل ہے، یعنی کہ ان کی وحدانیت میں شامل ہے. اس صورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں اشارے کیے گئے ہیں، اور یہ صفات عیسیٰ علیہ السلام اور کائنات کی کسی بھی چیز میں نہیں پائی جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز ہی اپنی ذات کی صفات کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ جو اپنی قدرت کاملہ سے ماں کے رحم کے اندر جس طرح اور جیسے چاہے بچہ پیدا کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا ایک نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ان کا ایک نمونہ ہے پوری اللہ تعالیٰ کی خلقت کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں، پیدائش تو انسان کے جسم سے ہوتی ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں. اس کے بعد قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا کہ یہ تورات اور انجیل اور ان سے پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس سے ہدایت پانے کے لیے 4 بنیادی اصول ہیں. وہ کون سے 4 بنیادی اصول ہیں؟ ہم وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے، قرآن مجید میں غور اور فکر کیا جائے، قرآن مجید کی تشریح اور توضیح کے لیے بنیادی اور مرکزی آیات کا رہنما اصول بنایا جائے، یعنی کہ قرآن مجید کی آیات کو اپنا رہنما بنایا جائے اور قرآن مجید پر عمل کیا جائے. اب جو شخص ان اصولوں کو چھوڑ کر قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کرنے کی کوشش کرے گا، ان 4 پوائنٹس کو بھول جائے گا، تو اس کے بھٹکنے کا اندیشہ ہو جائے گا، جس کے بارے میں اس صورت کی ابتدا میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے اور سوچ میں کجی ہے، وہ فرقہ واریت اور فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ متشابہات کا مفہوم اللہ تعالیٰ اور اہل علم کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. سورہ بقرہ میں زیادہ تر یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور جس میں کہیں کہیں پر عیسائیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں خطاب کر کے رخ اللہ تعالیٰ کا خطاب کا رخ عیسائیوں کی طرف ہے، بالخصوص عیسائیوں کی طرف ہے، جس میں ان کے عقائد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی شبہات کا جواب دیا گیا ہے.
सूरत अल-बक़रा की इब्तिदा में इसके आखिर में और ईमान के बुनियादी अरकान का ज़िक्र हुआ था, जिसमें इस्लाम की इमारत के बारे में बयान किया गया कि इस्लाम की इमारत किन बातों पर इस्तवार है। जो फ़र्द या कौम इसके अलावा दूसरा रास्ता तलाश करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए उसके किसी भी किरदार को, किसी भी अमल को कबूल नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर शिर्क से बचने के लिए भी हमें हुक्म दिया कि हमें शिर्क की तरफ नहीं जाना चाहिए और हमें अपने आप को सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस तरह को सूरत अल-बक़रा का इख्तिताम कुरान के अल्फाज मोमिनों की दुआओं के साथ हुआ है, इसी तरह सूरह आले इमरान का इख्तिताम मोमिनों की दुआओं से होता है। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अल-बक़रा और आले इमरान को दो नूर और ज़हरावीन करार किया है। ज़हरावैन करार दिया है। अब हम मुस्लिम की हदीस को देखते हैं कि मुस्लिम की हदीस में सूरह बक़रा की तफ़सील के दरमियान के बारे में बयान होता है कि कुरान की तिलावत किया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान की तिलावत किया करो, क्योंकि ये रोज़े क़यामत अपने पढ़ने वालों को इसका सिफ़ारिशी होगा। और 2 रोशन सूरतें अल-बक़रा और आले इमरान पढ़ो। ये क़यामत के दिन 2 बदलियाँ या परिंदों की तरह सफ़ें बाँधे झुरमुट की तरह होंगी, जो अपने पढ़ने वालों के बारे में अल्लाह ताला से तकरार करेंगी। सूरत अल-बक़रा की तिलावत किया करो, इसका पढ़ना बाइस बरकत और छोड़ना हसरत का सबब है। और जहाँ ये पढ़ी जाए, वहाँ जादू और जिन्नात असरअंदाज होने की जुर्रत नहीं करते हैं। यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि सूरत अल-बक़रा के साथ-साथ सूरह आले इमरान की भी अहमियत किस कदर ज़्यादा है। तो हमें चाहिए कि हम बक़रा का भी एहतमाम करें पढ़ने का और सूरह आले इमरान का भी एहतमाम करें पढ़ने का। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आयत का आगाज़ होता है, पहली 4 आयत को हम लोग देखते हैं कि सूरत आले इमरान का आगाज़ अलिफ लाम मीम यानी कि हरूफ मुक़त्तआत से होता है और अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई इलाह मगर अल्लाह वही है, जो कि ज़िंदा भी है और वो हमेशा कायम रहने वाला है। अल्लाह ताला के साथ हमेशा-हमेशा कायम रहने वाली है। देखते हैं कि सूरत बकरा का इख्तिताम ईमान के बुनियादी अरकान और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगने की दुआ पर हुआ है, जबकि सूरह आल इमरान की इब्तिदा में बताया गया है कि जिस अल्लाह पर तुमने ईमान लाना है, वो हमेशा कायम और दायम और ज़िंदा जावेद रहने वाला है। इसी ने लोगों की हिदायत के लिए पहले तौरात और इंजील नाज़िल फरमाई और अब अपने बंदों की रहनुमाई के लिए कुरान मजीद नाज़िल किया है। याद रखो, अल्लाह ताला नाफरमानों से सख्त इंतकाम लेने वाला है। हरूफ मुक़त्तात के बाद इस अज़ीम सूरत की इब्तिदा तौहीद बारी ताला से होती है। यहाँ तौहीद के 2 ऐसे पहलू बयान किए गए हैं, जिनमें अल्लाह ताला की कबीरियाई और अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला के ज़िंदा और कायम रहने का बयान किया गया है। जब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी। तो अल्लाह ताला ही वो वाहिद है, जिसको हमें सजदा करने का हुक्म दिया गया है और वही है जिसको हमें सजदा करना है। इसी ज़ात आला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हक किताब यानी कि कुरान मजीद नाज़िल किया और फिर अगली आयत नाज़िल होती है कि नज़्ज़ल अलैकल किताब यानी कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान को नाज़िल किया, कुरान को उन पर नाज़िल किया बिलहक़ के साथ हक़ के मुसद्दिक़न। अब वो जो हक़ के साथ नाज़िल किया है, वो तो ना सिर्फ़ उन पर नाज़िल किया है, बल्कि उनसे आई हुई पहली तमाम की तमाम किताबों की वो तस्दीक़ करने वाली है, जिनमें तौरात और इंजील दोनों शामिल हैं। इन दोनों की वो तस्दीक करने वाला है, कल वाली किताब है, यानी कि कुरान मजीद इन दोनों की तस्दीक करता है। यानी कि गोया कि हक और बातिल का फैसला करना लोगों की अक्ल और दानिश और किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है, बल्कि कुरान मजीद खुद लोगों की रहनुमाई का ज़ामिन है और सही और गलत की तमीज़ करने का मियार भी कुरान मजीद ने बयान कर दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब तक अपनी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत की ताबे ना कर दे, तब तक वो ईमान वाला नहीं हो सकता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अगली आयत में इरशाद होता है, मिन क़ब्ल हुदल लिन्नासि व अनज़लल फ़ुरक़ान इन्नल लज़ीना कफ़रू। अब जिस इंसान ने अल्लाह की आयत के साथ इनकार किया और जो उसका कुफ्र किया अल्लाह की आयत के साथ, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। तो अल्लाह ताला सख्त
इंतकाम लेने वाला है, उनके लिए शदीद अजाब है और अल्लाह सख्त इंतकाम लेने वाला है। यहाँ से हमने इन 4 आयात में क्या सीखा? हमने सीखा कि अल्लाह ही अकेला माबूद और वही हमेशा ज़िंदा और कायम रहने वाला है। दूसरी आयत में हमने देखा कि उसने तौरात, इंजील और कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। तीसरी आयत में आगे हमने देखा कि अब तौरात और इंजील नहीं, सिर्फ़ कुरान ही हिदायत का सरचश्मा है, सिर्फ़ उसी से हिदायत मिल सकती है। अगली आयत में हमने देखा कि कुरान मजीद पहली कुतुब आसमानी की तमाम किताबों की तस्दीक करता है और इनकार करने वालों के लिए सख्त तरीन अजाब होगा। अल्लाह ताला सख्त बदला लेने वाला है। ये अगली आयत के 3 हिस्से, 3 पार्ट्स बयान किए गए हैं। आगे देखते हैं, आगे अगली आयत को। इसी आयत का हम अगर देखें कि कुरान के अंदर फ़र्क के बारे में अल्लाह ताला ने कहाँ-कहाँ कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है। कुरान फ़ुरक़ान है, सूरत अल-फ़ुरक़ान की आयत नंबर 1 में इसका जब अल्लाह ताला ने बताया कि फ़ुरक़ान है, मुइज़्ज़ात भी फ़ुरक़ान हैं, क्योंकि मुइज़्ज़ात भी हक़ और बातिल के दरमियान में फ़र्क करने वाले हैं। और बदर का मोरक़ा जो था, मैदान बदर में जो हुआ था, जंगी बदर में, वो भी फ़ुरक़ान था, क्योंकि वो भी हक़ और बातिल के दरमियान में फ़र्क करने वाला था। सूरत अल-अनफ़ाल आयत नंबर 41। और फ़ुरक़ान से मुराद अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं, फ़ुरक़ान का बयान किया कि फ़ुरक़ान क्या है? फ़ुरक़ान से मुराद क़ुव्वत फ़ैसला भी है, कि इंसान जब फ़ैसला करता है, तो वो भी हक़ और बातिल के दरमियान में फ़र्क करके फ़ैसला करता है। हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब यानी कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने फ़ुरक़ान कहा गया है। अल्लाह ताला ने उसको फ़ुरक़ान कहा। ये कुरान मजीद से फ़ुरक़ान की एक्सप्लेनेशन हुई है। हम देखेंगे इंशाअल्लाह कि हमें कुरान की आयत को की तफ़सीर कुरान के अंदर से ही इंशाअल्लाह मिलेगी। आगे हम देखते हैं आयत नंबर 5 और 6 को हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है। आयत नंबर 5 के अंदर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यख़्फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई। बेशक अल्लाह वो है जिस पर कोई चीज़ ना ज़मीन में छुपी हुई रहती है और ना ही आसमान में। यानी कि बदला और सज़ा देने वाली हस्ती के लिए ज़रूरी है कि वो हालात और वाक़यात से अच्छी तरह से बाख़बर हो। ऐसा ना हो कि उसको कुछ बातें मालूम हो और कुछ बातें मालूम ना हों। चूँकि अल्लाह ताला बदला भी देने वाला है और सज़ा भी देने वाला है, तो उसको सब चीज़ों का इल्म भी होना चाहिए। उसको इल्म है, अल्लाह ताला उसके बारे में बयान करते हैं कि वो बाख़बर है। वो हर उस चीज़ से जो आसमानों में भी है और जो ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे छुपी हुई पोशीदा है। अल्लाह ताला अपने इंतकाम लेने के बाद इस आयत के अंदर बता रहा है कि मैं किसी पर ज़ुल्म नहीं कर रहा, बल्कि मुझसे कोई भी चीज़ मख़फ़ी नहीं, कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अब अल्लाह ही है, ना सिर्फ़ वो ज़मीन और आसमान के अंदर की तमाम चीज़ों को जानता है, बल्कि वो तो ये भी जानता है कि जो माँ के रहमों के अंदर औलाद पल रही है, वो कैसी है, उसकी शक्ल-सूरत बना कैसी है। अल्लाह ताला हर चीज़ से बाख़बर है, हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ की नक़्ल व हरकत से वाक़िफ़ है। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ अल्लाह से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, चाहे वो बारीक से बारीक ज़र्रा ही क्यों ना हो। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जिसमें हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सादिक और मसदूक रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम में से हर कोई अपनी माँ के पेट में 40 दिन ठहरता है तो जमा हुआ खून बन जाता है। फिर 40 दिन बाद गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। इसके बाद अल्लाह ताला फरिश्ता भेजते हैं, इसे आदमी का अमल, रिज़्क, मौत और नेक व बद होना लिखने का हुक्म देता है। फिर इसमें रूह फूँक दी जाती है। तो में एक बंदा अमल करता रहता है हत्ता कि इसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है। तो इसकी तकदीर गालिब आ जाती है, वो जहन्नमियों वाले काम शुरू कर देता है। ऐसे ही आदमी बुरे अमल करता रहता है हत्ता कि इसके और जहन्नम के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, तो वो जन्नतियों वाले अमाल शुरू कर देता है। इस हदीस से आदमी के अंजाम का ज़िक्र फरमाया गया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी भर माहौल के असर और बुज़ुर्गों के खौफ और ज़ाती मफ़ाद और इस्लामी हुकूमत के जबर से बज़ाहिर नेक अमल करते हैं, लेकिन ईमान इनके दिल में रासिख़ नहीं होता। महज़ माहौल की वजह से नेक अमल करते हैं। जो ही उन्हें मौका मिलता है, वो बुराई की तरफ लपक पड़ते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे दिलों के अंदर ईमान रासिख़ हुआ है या नहीं हुआ है? ये कितनी अहम बात है।
تقدیر ایسے ہی، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ دلوں کی نیتوں سے واقف ہے، دلوں کی بھید سے واقف ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر ہم نے کیا سیکھا؟ ان 5 اور 6 کو، اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہی ماں کے رحم میں انسان کی شکل و صورت بناتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ صورتیں بنانے اور اولاد دینے والا ہے، کچھ لوگوں کی شکلیں اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اللہ ہی بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت میں کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، سورہ آل انعام کے اندر اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری آیات میں اپنی ساری کی ساری خصوصیات بیان کی کہ اللہ ہی ہے جو یہ سارے کے سارے کام کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 7 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 کے اندر کیا ارشاد ربانی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد کیا آیت نمبر 7 کے اندر۔ آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے وہ ان میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں فتنے کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں۔ آگے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آیت نمبر 7 کو مزید دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے یہ مبین ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ اس کے احکامات محکم ہیں جن میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اور جو لوگ منکرین ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے، جو منکر ہیں اللہ کی آیات کے، ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، اللہ ان کی حرکات سے بہترین واقف ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے کہ دلوں کے اندر کیا ان کی کیفیات ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے اور امت کے اختلافات کو جاننے کے لیے یہ آیت بنیادی اور بہت اہم حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کی طرف نہ بھاگیں جو فتنہ پھیلانے والی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی انزل علیک الکتاب جب پڑھتے تھے تو اس کے پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ عائشہ جب تم متشابہات کے پیچھے لگنے والے لوگوں کو دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بتایا ہے کہ ان سے بچتے رہنا۔ متشابہات در حقیقت کیا ہوتا ہے کہ متشابہات اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، متشابہات کا مفہوم ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ متشابہات کیا ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اہل علم کو بھی علم ہے، جو اپنے علم میں راسخ ہیں، پختگی رکھتے ہیں، ان کو بھی ان کی تفسیر معلوم ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اہل علم سے رابطہ کرے اور اپنے آپ کو کجی کی باتوں میں نہ ڈال دے، اپنے دلوں کو کجی میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن مجید میں واضح اور متشابہ دونوں طرح کی آیات ہیں، جن میں واضح احکام ہے اور کچھ ایسی ہیں جن کے اندر واضح احکام ہمیں نہیں سمجھ آتا، اور گمراہ لوگ فتنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور متشابہات کو مقدم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ متشابہات کی طرف جائیں اور وہ زیادہ اول ہیں۔ پختہ علم، نیک اور سمجھدار علماء فتنہ پروی اور قرآن مجید کی غلط تعبیر سے پناہ مانگتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس پختہ علم ہے وہ غلط علم کی طرف اور
ऐसी चीज़ों की तरफ जो मुतशाबिहात में डालती हैं, उनसे पनाह माँगते हैं, उनकी तरफ नहीं जाते हैं। कुरान से इनकी तफसीर देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक मुहकम आयात कौन-कौन सी हैं। सूरह इब्राहीम में इरशाद होता है, रसूल इंसान बशर होते हैं, रसूलुल्लाह बशर और अब्द हैं, और रसूलुल्लाह गैब दान नहीं है, नबी मुख्तार कुल नहीं होता, रसूल मोहतरम और अपने नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं थे। उनके पास जो कुछ भी आता था वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही आता था। लास्ट आयत को देखते हैं जिसमें दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अब ये दुआ सिखाई जा रही है कि हम सारे नेक काम कर लेने के बाद अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह तो हमारे दिलों को टेढ़पन की तरफ ना लेके जाना, और हमें हमारे दिलों को कजी में ना डाल देना। अक्लमंदी तो ये है कि अल्लाह ताला से हिदायत की तलब की जाए, हमें चाहिए कि हम अल्लाह से हिदायत की तलब करें और हम आजिज़ी इख्तियार करें, गुमराही की तरफ ना जाएँ और अल्लाह से हमेशा आजिज़ी से मांगते रहें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ करते, ऐ दिलों को फेरने वाले, ऐ दिलों को फेरने वाले, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि अल्लाह ए दिलों को जो फेरने वाला है, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रखना। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, हम आप पर और आपकी लाई हुई शरीयत पर ईमान लाए, क्या आप हमारे बारे में खतरा महसूस करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, अल्लाह इन्हें जैसे चाहता है फेर देता है। अल्लाह ताला जैसे चाहता है दिलों को फेर देता है। लास्ट आयत में इरशाद होता है, रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फीही इन्नल्लाहा ला युख्लिफुल मिआद। ए हमारे रब, बेशक तो सब लोगों को उस दिन के लिए जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं, बेशक अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। उसके बाद देखते हैं जी, ये जो है सूरह आल इमरान है, और ये हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की का रोज़ा मुबारक है, जहाँ पर हमारी एक दीनी बहन गईं और उन्होंने ये वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर की। अल्लाह ताला उनसे कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको वहाँ जाना भी कबूल फ़रमाए, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने मुक़र्रब और सालिहीन लोगों के अंदर शामिल फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, हम सब से राज़ी हो जाए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जो गुनाह हो गए हैं, अल्लाह ताला उन सारे गुनाहों से हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें दोबारा गुनाहों की तरफ जाने से हमारे कदमों को रोक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।